ନମସ୍କାର। ଆଜି ରାମନବମୀ ଏବଂ ଏହି ରାମନବମୀରେ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ଅଦ୍ଭୁତ, ଅଲୌକିକ, ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳାର କଥା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମଗଜ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଥି ପୁରାଣର ପୃଷ୍ଠାରୁ ବା ପଣ୍ଡିତ ପୁରୋହିତଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀରୁ, ନୀତି ନିୟମର ଖସଡ଼ାରୁ ବା ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଭିତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଅନୁଭବର ଠାକୁର, ଉପଲବ୍ଧିର ଈଶ୍ୱର। ତୁମର ମନୋଦଶାକୁ ନେଇ, ତୁମର ଭାବକୁ ନେଇ ଏବଂ ତୁମର ଐକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଭାବକୁ ନେଇ ସିଏ ହୁଏତ ତୁମକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ଅପାଙ୍କ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ, ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରେ ବା କୌଣସି ନଦୀ କୂଳରେ, ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଅଲୋଡ଼ା ଅଜଣା ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର ଦାରୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି କାଠର ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେବଳ ଧୂପ ଦୀପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ପୂଜା ପାଉଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଯିବେ। ଇଏ କେବଳ ଏକ ମଶାଣୀ ଭୂଇଁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏକ ନିମ୍ବ ଦାରୁର କାଠରେ ତିଆରି, ମଣିଷ ହାତରେ ତିଆରି ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ମଣିଷ ହାତରେ ଇଏ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସତ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଇତିହାସରୁ 1000 ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ସହଜରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଲି କଥା। ଯେମିତି ଅନେକ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଲି କଥା କହୁଛି। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଯାହାର ସାମାନ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଅନୁଭବ ଥିବ ତା ଜୀବଦଶାରେ ବା ଉପଲବ୍ଧିରେ ସେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ସେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର କଥା କହୁଛି, ତାହା ଘଟିଥିଲା 1972 ମସିହାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ନିଜେ। ସେ ଘଟଣାଟି ଯେ କେବଳ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିଲା ତା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଲୀଳାଟା ଦେଖେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 1972 ମସିହାର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିବେ, ତାହା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 50-52 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ 50-52 ବର୍ଷ ତଳ ତ ବେଶୀ କିଛି ଗୋଟେ ଅଧିକା
वर्ष नुहे मु सेतलकु बीए पढुथिली मते 20 वर्ष होइतला पुरी राजा को मध्य 20 वर्ष होइतला कारण पुरी राजा एवं मोर जन्म मसीहा गोटे ये हूँ से 1972 मसीहा रथ यात्रार घटना जो घटनाटी समस्त हचकित कर एवं जगन्नाथ जे स्वयं सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान ताहा सी सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में लक्ष लक्ष लोक देखई देइथिले घटनाटी कौन थिला 1972 मसीह पुरी मंदिर रे प्रशासक थिले बिहारी लाल पट्टनायक जड़े आईएएस ऑफिसर 1972 मसीहा जाए जगन्नाथ को नहीं जहाँ कि दैनंदिन रीतिनीति हुए बा रथ यात्रार रीतिनीति हुए से कौन से निर्दिष्ट समय निर्घंट हो न थाए जमी स्कूल कॉलेज रे एति बेले क्लास स्टार्ट हम एति बेले प्रेयर क्लास हम 45 मिनट क्लास हम यही समय खेल छुट्टी हम जमी समय निर्घंट होता है मंदिर में सेमती किसी समय निर्घंट हो न थाए जे सकाळू ठीक 5टारे ठाकुर उठिबे ठीक 6टारे जलखिया खाइबे कि 8टारे गाधेइबे कि 10टारे भात अभड़ा खाइबे सेमिति नाही तांकर विधि रीतिनीति क्रमिक भाव चली केतले कु समय सेटा घटिबो ता केही कहि परिबेनी से ऑटोमेटिक चली थाए किंतु बिहारी लाल पट्टनायक जेहेतु जने आईएएस ऑफिसर थिले तांको मन भितरे टिके अहंकार थिला जे मु जने दक्ष प्रशासनिक ऑफिसर से 1972 रथ यात्रार पूर्व दिन प्रथम थर पई जगन्नाथ संस्कृतिर इतिहास रे ओडिशा इतिहास रे गोटे समय निर्घंट कले जे भोर भोर तीन ठाकुरंकर पहंडी विजय हम सकाळ 9टा सुधा तीन ठाकुर जमती रथ उपरे बसी जाइथिबे छेरा पहरा निर्दिष्ट समय रहबो एवं ठीक दिन 2टारे रथ भिड़ा हेबो जेहेतु संध्या सुधा 3टाक रथ गुंचारे लागिबा दरकार कारण साधारणतः देखा जाई थाए एबे मध्य चली रथ यात्रा दिन अधिकांश वर्ष 3टाक रथ संध्या सुधा गुंचारे लगी पारे नहीं राति रास्ता रही जाती ता आर दिन भिड़ा हुए किंतु प्रशासक बिहारी लाल पट्टनायक कहले ना मु गोटे इतिहास रे गोटे मोर प्रशासनिक दक्षता को प्रमाणित करी चली जीवी ठीक दिन 2टारे रथ भिड़ा हम किंतु सकाळ 9टा सुधा ठाकुर पहंडी विजय कि रथ उपरକୁ चढ़ी जाइथिबे निर्दिष्ट समय निर्घंट करदेले एवं से अनुसार तार दिन सकाळू भोर भोर तीन ठाकुर पहंडी विजय आरंभ हो गला एवं 9टा बाजी न थाए बलभद्र सुभद्रा तांका रथ उपरे तांका आस्थान रे बसी सारी लेनी शेष को आसबे आमर कालू महाराज श्री जगन्नाथ आमे मैंने साधारण जानू एवं साधारण मनुष्यंकर बर्तमान जे से धारणा अच्छी जहाँ बिहारी लाल पट्टनायक भी थिला जे पहंडी विजय केमी हुए ठाकुरंकर अंटारे दौड़ी बंधा जाए आगाड़ू लोक दौड़ी आगाड़ को दौड़ी थी 2टा पछाड़ी की 2टा थी आगाड़ू सेवायत मैंने भिड़ू थे पछाड़ू भी सेवायत मैंने भिड़ी दौथे जो आगाड़ को भिड़ा पछाड़ को भिड़ा ये झिंकार एडे के जो गोरु ठाकुर से घुची जाते पहंडी विजय से रथ उपरକୁ जाती आउ मनीष तो यही सेवायत मैंने भिड़ुंट दौड़े आम तो भिड़ुचे तेणु आम जिते चाहिए भिड़िकी नहीं रथ पर बसई पार भोर भिड़ी दे पार राति अधे भिड़ी पार तेणु बिहारी लाल कहले भोर भोर पहंडी हो बलभद्र सुभद्रा बसी सारे बर्तमान जगन्नाथ पहंडी जगन्नाथ गोटे सुना पिला भाया बेस पहंडी रे जाइकी रथर चारमालर अधारे पहुंची गले चारमाल कौन जो रथ उपरକୁ ଯିବା ପାଇଁ जो पटा सब बंधा होता है सब ताल गछर पटा एमती ही बंधा होता है जहाँ उपर ठाकुर जहारी उपर ठाकुर जाते कहते चारमाल जगन्नाथ जाइकी 9टा बाजी न थाए चारमालर अधारे माने आउ अधा गले रथ उपरକୁ चलीजे अधारे रहीगले आउ उपरକୁ उठिले माने
सेवायत मैंने भिड़ू था घंट बाजू थाए जो लोक मैंने लक्ष लक्ष लोक पहंडी देखापी सिंहद्वार छिड़ा होता से हुलहुली हरिबोल पकाऊ था सेवायत मैंने टाणु था कि देखागला जगन्नाथ जमा उपरको जाऊना आपण मैंने जो मैंने मो कथा शुणुते भावुवे टणा होती जाऊना गोटे काठर गंडी भिडिकी दौड़ी टणा हो आग पछकरी जीवन केमी ना प्रकृति से जाऊन आ जगन्नाथ केते ओजन से ओजन कलना करहबनी 500 क्विंटाल ना 1000 क्विंटाल माने गौरू एकदम पहाड़ कि पर्वत जो मैंने जगन्नाथ को कुंडेबार सुजोग जीवन में पाई अतीत एवं तो संभव नुह जगन्नाथ स्पर्श कर होनी से मैंने जानवे कारण मु जगन्नाथ को रथ उपर अतीत अनेक थर कुंडे माने कुंडे माने एकदम छाती पर पड़ी नाक को नाक घोषी मु जो कुंडे मु निजे जानी माने जमी गोटे मो पहाड़ को कुंडौ मैंने होल चल एत गौरू सी एत निदा जे जगन्नाथ को धरी न से भाभी पारनी से केते ओजन देखा गोटे 6 फुट कि 5 फुटर मूर्तिटे बोली ना एते शक्तिवान एते ओजन सी एडे के गोरु माने ओजन ठाकुर चारमाला अधारे होते चारमाला तो तलू उपरू केमती स्लांटिंग है कि से अधारे एमती रही एपटू दौड़ी धरा है पछाड़ू भी सेवायत मैंने दौड़ जेहेतु सुभद्रांकर आ बलभद्रंकर पहंडी सरी जाए से सेवायत मैंने भी आसिक एथरे लगी जाती तेणु सहस्राधिक माने 100 रु अधिका निश्चित 60-70 तो बेसी निश्चित सेवायत मैंने पहंडी विजय दौड़ी धरी था किंतु जिते घंट बाड़े ठाकुर ऊपर को जाऊना ये भाविले किए बिहारीलाल पट्टनायक भाविले से कौन खुशी 9टा सुधा तो बलभद्र सुभद्रा हो गलानी आउ 10-5 मिनट भितर जगन्नाथ पहुंचे मन आनंद कुरुल उठुए मो कथा अनुसार ठीक 9टार पहंडी हो गला किंतु जगन्नाथ को चिन्हार से भूल करदे जगन्नाथ अधार बिहारीलाल पट्टनायक भाविले ये तो मनीष मैंने सेवायत मैंने भिड़ुंट ये जाणी जाणी बोधे भिड़ू ना जाणी जाणी डेरी करदे रथ जदि पहंडी विजय पर रथ टणाटा डेरी हो राति रथ रे रास्ता रास्ता रही सेवायत मान 2 पैसा भल रोजगार हम ये बोधे जाणी जाणी करूना ये टे विरक्ति प्रकाश कले टाण रही कौन तुम टाणुच से रही जाऊँगी सेवायत मान कहले ना आज्ञा ये जमा जाऊना ना मिछ जाऊना कौन अरे भाई सकाल 9टा 10टा है 10टा रु 11टा है माने ठाकुर जोठी अच्छे से टिकी हेले घुचुना एमाने प्राणपणे बल प्रयोग कर भेड़ुंट से सब लोक भर मुझे निजे छिड़ा पाखे मो पहंडी देखुची प्रकृति में ठाकुर जमा ऊपर को जाऊना सतीकी इच्छा होनी से जमा जावाई समस्ते कह भाई जाऊना कौन भिड़ा हो गोटे काठ मुठी जाऊनी से थाए थे एत ओजनिया थाए थे ठाकुर थे माने स्लांटिंग अच्छा एत ओजनिया लोक हाथ कौन हो थर थे एपट को एमती नणी जाऊे थर थे बाँ पट को नई जाऊे मैंने पड़गला भाया ये जो सेवायत मैंने सैड्रे आगर छाई थे तादर अनेक सेवायत रथ तले पड़ी खंडिया खाबार हेले क्षताक्त हेले किछि सेवायत से देह तले चापी होगी हस्पिटाल मध्य बुहाले किछि सेवायत माने मोटामोटी किछि सेवायत ठाकुर जो 2 आड़ को नई जाऊँ तले पड़ी खंडिया खाबार हस्पिटाल को मत गले से बिहारीलाल पट्टनायक जाइले ना प्रकृति में ये कौन जाणी जाणी खंडिया खाबार हे ठाकुर को तले चापी हो बोधे ठाकुर जाऊना कौन करा सेवायत मैंने भी जानिले प्रकृति में ठाकुर जाऊना कारण समस्त शक्ति रे दौड़ी भिड़ला से जाऊ न समस्त भितर पड़गला यही जो बिहारीलाल पट्टनायक अहंकार औद्धत्य कहते 9टा सुधा सबू ठाकुर मैंने रथ पर बसवे जगन्नाथ बोधे ये अहंकार टाक सहिले जगन्नाथ जनईदे अरे तू मो कौन समय निर्घंट करू जहाँ अधीन काल कराए तो सी है कालर ऊर्ध्वे जगन्नाथ हेले महाकाल कालर ऊर्ध्वे महाकाल अधीन काल तू सामान्य छार मनीषटे तू आयस हो कि जहा हो तू कहबू ठाकुर ठीक 9टार पहंडी के रथरे बसवे तो कथा अनुसार सब चलो ताले सी कहीं रही जगन्नाथ मत सही पाइले प्रकृति में जगन्नाथ गले आप आखि मुझे बेस भावतु ये घटना घटता 72 मसीह बहुत लक्ष लक्ष लोक देखी जानी विषय जानी
ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇରେ ଉଠିବେନି କି ଠିକ ସମୟରେ ଗାଧେଇବେନି କି ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଯିବେନି କି ଠିକ ସମୟରେ ପୌଡ଼ ଯିବେନି, ବିରଳ ଘଟଣା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାଙ୍କୁ ତେଲ ମାରିବାକୁ, ଯେମିତି ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଟା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବନି, କହିବ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି, ଜମା ଯିବିନି ତ ଜିଦ୍ଦି କରିବ। ବୋଉ କହିବ ଏ ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ତତେ ଚକୋଲେଟ ଦେବି, ବୋଉ କହିବ ତାହେଲେ ମତେ ଆଗ ଚକୋଲେଟ ଦେ। ତାକୁ ମିଠେଇ କି ଚକୋଲେଟ କିଣା ହେଇକି ଦିଆହେଲେ ସେଇ ଚକୋଲେଟ ଉପରେ ସେ ପଳାଏ ସ୍କୁଲ। ଆମ ଠାକୁର ହେଲେ ଅବିକଳ ତ ମଣିଷ, ଏମିତି ଅଝଟ କରନ୍ତି, ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତି, ବହୁତ ନଜର ଅଛି। ସେଇ ଅଝଟ କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ତେଲ ମାରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ତିଆରି ହେଲା, ତିଆରି ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପଇଲା, ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା, ପୁଣି ଭିଡ଼ା ହେଲେ। ସେ ପଣା ଫଣା କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ, ପୁରୀ ରାଜା ହେଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିନିଧି, ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କର ବାପା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥରକ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ଛେରା ପହଁରା କରିବେ। ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ସେ ବେଶ ପୋଷାକ ହଉଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି, ମକୁଟ ଫକୁଟ ପିନ୍ଧି ଯା ତାଙ୍କ ରାଜନଅରେ। ଏଠୁ ରଥରୁ କିଛି ଜଣ ସେବାୟତ ରାଜନଅରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମଣିମା ଠାକୁର ଜମା ଉପରକୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, 9ଟାରୁ ଏନେ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ଖରାରେ ସିଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେବାୟତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେଣି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାଜା ସେତେବେଳକୁ ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ବେଶଭୂଷା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏତିକି ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ଖାଲି ଦେହରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଦର ପକେଇଛନ୍ତି। ରାଜା ସାଧାରଣତଃ ଆସିଲା ବେଳେ ରୂପା ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିବେ, ଛତା ଛତି ଧରା ହେଇଥିବ, ହାତୀ ଆଗରେ ଚାଲିଥିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯବାନ ଟୋକା 20 ବର୍ଷର, ଖାଲି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାଦର ପକେଇଦେଲେ, ଖାଲି ପାଦ। ସେଇ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିଲେ, ମୋର ରୁମ ଟାଙ୍କୁର ଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ମୋର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଗଲେ, ରଥପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରଥପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଆଗ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଛାର ମଣିଷ, କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଥିବ ଆମେ ମାନୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି, କାହା ମନରେ ହୁଏତ ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା ସାରରୁ ବହୁତ ଆଡୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାରେ ସିଝିଲେଣି, ବହୁତ ସେବାୟତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେଣି, ଆଇ ଅଭିମାନ ଆଉ କରନ୍ତୁନି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରଥ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା କହିକି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାଟା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ପିଠିରେ ଥାପୁଡ଼େଇକି କହେ ବାପା ଯା। ପୁରୀ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଅବିକଳ ସେମିତି, ଯେମିତି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିଠି ପଟେ ହାତ ଏମିତି ମାରି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଥର ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ଲାଗିଲାନି, ଭିଡ଼ା ହେଲେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ଭିତରେ କି 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଠାକୁର ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ରଥ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଏଇଟା ଆଖି ଦେଖା କଥା। ରାଜାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସତେ ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥର ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦେବା, ସେ ଯାଇକି ରଥ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। এই ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲୀଳା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଯାରେ ମଣିଷ, ତୁ ଛାର ମଣିଷ, ତୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖାଇବି, ଉଠିବି, ଶୋଇବି, କେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ୟୁ ଆର୍ नो ବଡି ଟୁ ଗାଇଡ୍ ମି ଅର୍ ଟୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ ଟର୍ମସ୍ ଟୁ ମି। ତୋର ଔକାତ କେତେ? ତୁ କହିବୁ ଯେ ଏତିକଳେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏତିକଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ବିହାରୀଲାଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଚୁରଚୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଯେମିତି ହବା କଥା ହେଇଥିଲା। এইଠି ମୁଁ କହି ରଖେ, ଆମେମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣିକି ଆଣୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆମେ ରଥ ଉପରେ ବସଉଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ। ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ଜଣେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ଛାର ମଣିଷ, ତୋର ଡୋରି ମୋ ହାତରେ, ତୋ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାର ଡୋରି ମୋ ହାତରେ, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି ଟାଣୁଛି, ଯେମିତି ନଚଉଛି, ଜୀବନ ସାରା ତୁ ସେମିତି ନାଚୁଛୁ। ତୁ ଭାବି ଦେନା ତୁ ଯେମିତି ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ହେଇଯାଉଛି ବା ହେଇଯିବ ତୋ ଅନୁସାରେ। ନା, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ତାହା ହବ।
मु तोते जेमती नचेबी तू सेमती नाचबू तो जीवन यात्रा को मु जुआड़े भिड़ी तू सेमती भिड़ेबू तोर डोरी मो हाथ यही बार्ता टिकक दवापाई यही पहंडी यात्रार एक सांकेतिक बार्ता आमे ताकू भिड़ुचु अथच सी आमको भिड़ुचंती से दिन 1972 मसीहार रथयात्रा यही संदेशटा श्री जगन्नाथ देइथिले समग्र मानव जाति की यही है आजिर श्री जगन्नाथ अलौकिक लीला संपर्क एवं यही घटना को नहीं श्री मंदिर रे सेतळकू सह प्रशासक थिले मो बापा लक्ष्मीधर महापात्र सह प्रशासक से ओएस ऑफिसर सी आप गोटे बही लिखिले मो बापा जने भल लेखक अनेक बही अच्छी लिखिले कालियार करामती माने कालिया कौन करामती देखई पारे यही घटना को नहीं सी गोटे बही लिखिले जो बहीटी की बिहारीलाल पट्टनायक प्रशासक जेहेतु से जानीपारे सी कि भूल करिसंती मंदिर पैसा मंदिर प्रशासन द्वारा ये बहीटी पब्लिश प्रकाशित होता हजार हजार संख्या से बिक्री होती बर्तमान किंतु तार खंडी हेले कपि किनिया चाहिए आ मिलिबो नाही मोर एठी आपण मान प्रश्न जगन्नाथ कौन गोटे निर्जीव काठर गंडी ना सर्वशक्तिमान ऑल पावरफुल ऑल नोइंग से सबु किछि जानुचंती आम मान कथा जानुचंती आम मन भीतर कथा जानुचंती आमे जहाँ कहूचु ता भी शुणुचंती बिहारीलाल पट्टनायक औद्धत्य अहंकार यही समय भितर तेम जाइक रथ उपरे सकाल 9टा सुधा पहुंची जीवो सेटा भी से जानी परिचंती बोली ये खेलटा देखेले कहले तू कोन मते कंट्रोल करिवु तू मते नियंत्रण करिवु के से तेनु भाई मु कहया कथा जे हमर ए जो जगन्नाथ बारंबार कहूची से जमा काठर गोटे निर्जीव मूर्ति नुह विश्वर अन्य जो सब सिंहासन बसी धूप धुआ खाऊं अरे ये पूरा आमरी भितर भाई बंधु कुटुंब आमर सखा सहोदर शोची उठुची गाधुची जर होची जर पड़ुची आमरी भाई आम जमी मनीष मरुची सी सेमती भी मरुची ए सबूर ये जो मृत्युर रहस्य नवकलवर हो बा जहा हो एगुड़ा सब परवर्त समय मो आखि आगे जहाँ घटी जाइए मत बर्तमान 72 20 वर्ष रु 72 52 वर्ष भितर जहाँ जहाँ मो आखियारे घटी जाइए मुझे मझे मझे कहबी से किए विश्वास करूँ मोर से जायस ना कि खाली मुझे कहया कथा आम ठाकुर हेले जड़े जीवंता ठाकुर ताकू पाया को गले केवल समर्पणर भाव एवं प्रेमर पूजा तापति भल पाइबा अनाबिल कामना रहित प्रेम एवं स्वयं संपूर्ण समर्पण तू सब किछि तोरी इच्छा पूर्ण हो तोरी इच्छा पूर्ण मोर इच्छा बोली किछि नाही एई भाव टिकक जदि रही जिवो ताहाले आम जगन्नाथ आमर आपणकर आम सह आम परिवार जड़े सदस्य ही रही थे ये वीडियोटी केमती लगे मत कहे लाइक करेंगे कमेंट देवे शेयर निश्चय करेंगे एवं पुणी थे कहीदे जो मैंने व्यक्तिगत भाव में मो सहित संपर्क रखा चाहूँगी व्यक्तिगत भाव में मोबाइल फोन रे हो बा मो घर को आसी देखा मिलिया संभव नुहे मु सबुआडे बुलू थाए कौटी स्थिर होकर रही था मुझे जानी केतले कौटी रही मुझे किंतु आपण मैंने मो आश्रम को आसिले निश्चित देखा साक्षात हम आमर भावर आदान प्रदान हम एवं मोर बही किनिया को हो बा मो सहित आश्रम आसी देखा करिया को हो जहाँ जानिया को चाहिए गोटे नंबर कहीदे आज टिपंतु कागज कलम टिपंतु नचेत मोबाइल टिपंतु कहूँ 9853431018 आउ थे कहूँ 9853431018 यही नंबर में कांटेक्ट करेंगे पप्पू महाराज सी आपण को एकदम सठिक मार्ग देखईदेवे केमी आश्रम को आसवे मो सहित देखा।
ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଆଜି ରାମନବମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି।